ठीक है, so plan came to us like Akasa Air 692, Boeing 737, vector turbulence is medium. Mumbai to Hyderabad, alternate is Bidar, equipment standard, flight rule Yankee. Time of departure 1100, scheduled flight. Route Whiskey 28 and flight level is also given here. Then VIP on board. Okay, all parameters are available. Now, with this, okay, with this, we'll practice on the question what we have seen इन वेदर रिपोर्ट yesterday. ठीक है कि वेदर डेविएशन के कारण हमने जो डेविएशन लिया उसको कैसे प्लान करेंगे. बट बिफोर गोइंग देयर आई एम गोइंग टू गिव अ क्वेश्चन. ठीक है, एंड either of alpha juliet delta or papa romeo kilo, either of you can go ahead with the answer. ठीक है, the question is you are 70 nautical mile from Pune. Go ahead. And radio communication failure like this. Go ahead, either of you. Alpha Juliet Delta, are you able to answer? Yes, sir. देता हूँ सर तो. Then go ahead. हाँ. Mumbai control. Akasa Air 692 transmitting blind on 125.9er Boeing 737 Mumbai to Hyderabad. Current position 70 nautical mile outbound Pune. Flight level 210 Whiskey. No, look at the plan again. What is the current flight level? सर 210 है फ्लाइट लेवल दिया. No. After Pune, it is 110, right? Sorry, sir. Yes, sir. Okay. Correct. Go ahead. Flight level 110 Whiskey 28 radial 116. Time now 1130. Estimating a Tapo 1215 Gulbarga 1230 ETA Hyderabad 1300. Negative contact with ATC. I say again. Mumbai control Akasa Air 692 transmitting blind on 125.9er Boeing 737 Mumbai to Hyderabad. Negative contact with ATC.
current position 70 nautical mile outbound Pune, flight level 110, whiskey 28, radial 116. Time now 1132. Estimating a tapo correction. A tapo 1215. Gulbarga 1230. ETA Hyderabad 1300. Will transmit again 1045. Akasa Air 692. Okay. Is this clear to all? Any review by anyone? If anyone has noted the question thoroughly, कोई review, कोई suggestion? सर इसमें जो एस्टिमेटेड टाइम है ना, उसमें जो इसका 1132 चेंज हो गया है। Current time, right? करंट टाइम, वो पहले अलग था। Current तो time. सेम से। Okay. Alpha Juliet Delta, what is your response then? Why this is changed? सर 2 मिनट ट्रांसमिट करने में फिर आगे गए, फिर उसके बाद आई से अगेन डिस्टेंस फिर सेम है ना, इसीलिए। Then what is your distance? डिस्टेंस सर सेम है। Got it? यस सर। Correction पता चल गया? हाँ सर। ठीक है, ओके। मैं उसको बताता हूँ। विल ट्रांसमिट अगेन, जब आप टाइम बोलते हो ना तो वहां पे एट प्रीपोजिशन का यूज करना सीखो, इससे आपका स्टेटमेंट बेटर बनता है। विल ट्रांसमिट अगेन एट 1045। ठीक है, टाइम के साथ हमेशा लगाया करो एट। ठीक है, और कोई लोकेशन रहे, कोई पोजीशन रहे, वहां पे यूज किया करो ऑन। कहीं पे जाना हो या किसी के लिए आंसर कर रहे हो तो वहां पे यूज किया करो फॉर या टू, डिपेंड्स ऑन द सब्जेक्ट मैटर। तो प्रीपोजिशंस के यूज करने से आपका इंग्लिश लैंग्वेज बेटर बनता है। ठीक है, अदरवाइज वहां पे एक लैग दिखता है। ओके, नाउ इन द फर्स्ट सेक्शन ऑफ कॉल एंड सेकेंड सेक्शन ऑफ कॉल, all the estimates and time shall be equally matched, there shall be no differences। ऐसा नहीं कि आप पहले क्वेश्चन में बताए कि अटापो आई विल रीच एट 1215 एंड सेकेंड क्वेश्चन इट विल बी समथिंग एल्स। नो, इट शुड बी एग्जैक्टली सेम। There can be difference in your current position, not in the estimate. In the current position, there can be difference for the distance and for the time. Why? Because when pilot is making a realistic answer, they can assume कि जब तक में मैंने ये कॉल दिया तब तक में 2 मिनट मैंने स्पेंड कर लिया या 1 मिनट मैंने स्पेंड कर लिया। सो योर करेंट टाइम में वेरी। अगर आपने सेक्शन 1 में लिखा है 1130, सो सेक्शन 2 में यू कैन से 1131 या 1132, डिपेंड्स। 1 या 2 मिनट आप इसको एक्स्ट्रा कंज्यूम दिखा सकते हो इन द सेकेंड सेक्शन ऑफ कॉल। बट एट द सेम टाइम डिस्टेंस शैल ऑल्सो रिड्यूस। अगर आप सेक्शन 1 में 70 नॉटिकल माइल दूर हो तो सेक्शन 2 में आपको 68, 69, 65 ये दिखाना पड़ेगा कि आपने जब तक में 71 नो इट शुड बी, अच्छा Outbound. आउटबाउंडिंग, सॉरी 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 सॉरी, यस। ठीक है, सो इट इज, इफ इट इज आउटबाउंडिंग देन इट विल इंक्रीज कि 71, 72 नॉटिकल माइल। कुल कहने का ये मतलब कि आपने डिस्टेंस थोड़ा और कवर कर लिया। ठीक है, डिस्टेंस आपने थोड़ा कवर कर लिया और टाइम थोड़ा स्पेंड हो गया, दैट्स ऑल। तो अगर इनबाउंडिंग है तो डिस्टेंस कम हो जाएगा, अगर आउटबाउंडिंग है तो डिस्टेंस बढ़ जाएगा, लाइक दिस। ठीक है, डिस्टेंस आपने थोड़ा और कवर किया, टाइम थोड़ा सा और स्पेंड हो गया। तो इन दोनों चीज का डिफरेंस सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 के बीच में देखने को मिल सकता है। इज दैट ओके? ओके सर। ठीक है, चलो
सो सेक्शन 1 एंड 2 में सिर्फ यही डिफरेंस रहेगा आपका. अदर देन विल ट्रांसमिट अगेन. When you are going to transmit again, either you can say with the reference of time, or you can say will transmit again, reaching Atapo. ठीक है, जब अतापो पहुंचूंगा तब कॉल करूंगा. ओके, डन. So this is the question in front of you now. चलो, with the same thing, the question comes like this. ठीक है, this answer I am going to give. Just have a thorough look out. You are 70 nautical mile from Pune and received, ठीक है, and received bad weather warning, bad weather warning over Atapo. This is the question. कि जब आप मुंबई से पुणे से 70 नॉटिकल माइल दूर निकल गए हो, then you have received bad weather warning over Atapo. यानी look at the chart once. जब आप इस पोजीशन पे हो, मींस पुणे से 70 नॉटिकल माइल अहेड, तब आपको पता चला कि रास्ते में यहाँ पे मौसम खराब है. ठीक है, अतापो के ऊपर मौसम खराब है. तो आप क्या करोगे? आप डेविएशन प्लान करोगे, राइट? कि आप इस रूट को छोड़ के ऐसा करके जाओगे या फिर ऐसा करके जाओगे, राइट? इधर लेफ्ट से राइट मारो या राइट से लेफ्ट मारो. आपको बस डेविएशन प्लान करना है. इज दैट क्लियर? सो फॉर द डेविएशन प्लान, हाउ द कॉल कैन गो. अटापो के ऊपर मौसम खराब है, डन. एंड आपको डेविएशन प्लान करना है. तो कल जो हमने डेविएशन प्रोसीजर पढ़ा था उसमें से कॉल करेंगे. जस्ट हैव अ लुक एंड ऑब्जर्व द आंसर टाइम. आपको आंसर समझ में आएगा. ठीक है, सो हाउ दिस इज गो, जस्ट हैव अ लुक. मुंबई कंट्रोल, आकाशा एयर, फ्लाइट प्लान देखें 692. ठीक है, मुंबई कंट्रोल, आकाशा एयर 692 on 125 decimal liner Boeing 737 IFR Mumbai to Pune and VFR Pune to Hyderabad. Current position on flight level 110 whiskey 28 radial 2 correction radial 116 70 nautical mile outbound Pune. Time now 1140. Received, ठीक है, received bad weather warning. weather को शॉर्ट फॉर्म में WX. bad weather warning over Atapo. जैसा क्वेश्चन में दिखा हुआ है. तो क्या करना चाहते हो? would like to, ठीक है, would like to deviate, ठीक है, would like to deviate by 15 nautical mile right of whiskey 28 and will climb 300 feet and will rejoin whiskey 28 over Gulbarga. Estimating Gulbarga 1230. Request deviation and rejoining clearance. Akasa Air 692. Let me review the call for you.
We have told कि our current position is this and this. Now, received bad weather warning over अतापो, अतापो के ऊपर मौसम खराब है। तो आप क्या चाहते हो भैया? हम चाहते हैं would like to, ठीक है, would like to deviate by 15 nautical mile right of whiskey 28, यानी whiskey 28 जो है इससे 15 nautical mile राइट में ट्रेवल करना चाहते हैं, ये वाला लाइन। एंड विल क्लाइंब 300 फीट, यानी हमारा जो डेविएशन प्लान है लेटरल है एज वेल एज वर्टिकल है, दोनों। तो वर्टिकल डेविएशन हम 500 नॉटिकल माइल तक, सॉरी 500 फीट तक कर सकते हैं। आउट ऑफ 500 वी हैड चूजन 300 ओनली। Here also you can choose 10 nautical mile, 20 nautical mile, 30 nautical mile, whatever you wish, but up to 40 nautical mile only, because weather deviation में 40 nautical mile तक का deviation ले सकते हो। So मेरे को लगा कि 15 nautical mile से काम चल जाएगा। So would like to deviate, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कई तरह के क्वेश्चन स्टेटमेंट बन सकते हैं। would like to deviate for 15 nautical mile, ये भी लिख सकते हो, for 15 nautical mile to the right, ठीक है, दाएं साइड में 15 nautical mile। would like to deviate 15 nautical mile, ना for ना by, would like to deviate 15 nautical mile right of whiskey 28 and climb for 300 feet, और 300 फीट क्लाइंब भी करूंगा। टू अवॉइड बैड वेदर, इफ यू वांट यू कैन यूज टू अवॉइड बैड वेदर। सो वट एवर द स्टेटमेंट्स यू लाइक। वुड लाइक टू डेविएट बाय 15 नॉटिकल माइल राइट ऑफ व्हिस्की 28 एंड विल क्लाइंब 300 फीट टू अवॉइड बैड वेदर, बैड वेदर को अवॉइड करने के लिए। डन। सो यू कैन यूज दिस टू अवॉइड बैड वेदर। उसके बाद क्या प्लान है? उसके बाद दो चीज, विल रीज्वाइन व्हिस्की 28, वापस आप अपने रूट पे कब रिटर्न आना चाहते हो? ओवर गुलबर्गा। या फिर आप अगर वापस नहीं आना चाहते हो तो आप इसको बोल सकते हो, विल फ्लाई पैरेलल ऑन डेविएटेड ट्रैक, ठीक है। उसका स्टेटमेंट लिखो। आप अगर अपने रूट पे रिटर्न नहीं आना चाहते हो, सो यू कैन से विल फ्लाई पैरेलल ऑन डेविएटेड ट्रैक, जो हमारा डेविएटेड ट्रैक है उसी पे फ्लाई करूंगा, विल फ्लाई पैरेलल ऑन डेविएटेड ट्रैक। या फिर विल मेंटेन डेविएटेड ट्रैक, ठीक है, विल मेंटेन डेविएटेड ट्रैक लाइक दिस। तो हमने यहाँ पे क्या ऑप्ट आउट किया कि हम रीज्वाइन कर लेंगे, अपने रूट्स पे वापस आ जाएंगे। एंड कहां पे वापस आएंगे? एट गुलबर्गा, कि गुलबर्गा पे हम वापस अपने रूट को ज्वाइन कर लेंगे। सो आप अपने रूट को ज्वाइन कर सकते हो ओवर किसी एमआरपी, या फिर किसी एमआरपी से किसी डिस्टेंस पे विल रीज्वाइन गुलबर्गा, ठीक है, ऐसा करके। या फिर विल रीज्वाइन व्हिस्की 28 एट 10 नॉटिकल माइल टू गुलबर्गा, ये भी आप लिख सकते हो कि जब गुलबर्गा से 10 नॉटिकल माइल दूर हूं तब जाके मैं व्हिस्की 28 को ज्वाइन कर लूंगा। सो इट इज अप टू यू, आपने क्या प्लान किया। जिस भी जगह को आप प्लान करोगे उस जगह का एस्टिमेट बताओगे कि गुलबर्गा में कितने बजे पहुंचूंगा। अभी बज रहे हैं 11:40, गुलबर्गा पहुंचूंगा 12:30 पे। रिक्वेस्ट डेविएशन, सबसे पहले तो डेविएशन का परमिशन, उसके बाद रीज्वाइनिंग का परमिशन, दोनों चाहिए। समझ में आया सबको ये कॉल? Yes, no, anything? Is this clear? Affirm. यस सर। जितने ऑल्टरनेट, हाँ, जितने ऑल्टरनेट स्टेटमेंट्स दिए हमने वो समझ में आया, जो कि मैंने आंसर में नहीं किया, बट आई हैड गिवन एन एग्जांपल कि आप ये भी बोल सकते हो, ये भी बोल सकते हो, वो सब आपने नोट किया, बिकॉज दैट हेल्प्स। अगर आपको एक सिंगल स्टेटमेंट याद नहीं रह पाता है तो यू आर हैविंग 3-4 ऑप्शंस कि इन सब में से कुछ भी बोल दो। आप सबने नोट किया अल्टरनेट स्टेटमेंट्स को? हाँ। यस सर। ठीक है, ठीक है। So this is the call for weather deviation, ठीक है, when you choose deviation in case of bad weather, ठीक है।
So this is known as call for weather deviation. I am going to give one more example with the same. ठीक है, just have a look. एक और सेम टाइप का कॉल देता हूं. You are 40 nautical mile to Atapo. ठीक है, अभी क्वेश्चन चेंज किया. You are 40 nautical mile to Atapo. क्वेश्चन भी आप लोग लिखो, तब आप उसका आंसर लिख पाओगे अच्छे से. You are 40 nautical mile to Atapo and received bad weather warning over गुलबर्गा. गुलबर्गा ही डैमेज हो गया. इस केस में क्या करोगे? ठीक है, अब देखो जो डेविएशन का प्लान है, कैसे कैसे आप अपने मर्जी से उठा सकते हो. कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है कि यही करना है यही करना है. आप अपना प्लान डालो, अगर वो एक्सेप्टेबल है तो दैट इज गुड. ठीक है, जस्ट हैव अ लुक. Mumbai Control, Akasa Air 692 on 125.9er, Boeing 737, Mumbai to Hyderabad. Current position, flight level 110, Whiskey 28, radial 29er, 40 nautical mile, inbound, Atapo. Time now 1220. ठीक है, अभी आते हैं मेन क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है. रिसीव्ड बैड वेदर वार्निंग ओवर गुलबर्गा, would like to deviate 20 nautical mile right of Whiskey 28 and climb for 500 feet. Will cross Whiskey 120 at 1240 and fly direct to Hyderabad. ETA Hyderabad 1315. Request deviation and crossing clearance. Akasa Air 692. देखो, सबसे पहले हमने कहा कि हम डेविएट करना चाहते हैं कि आपके डेविएशन का क्या प्लान है. तो हमने सोचा कि विस्की 28 से राइट साइड में 20 नॉटिकल माइल डेविएट करेंगे क्योंकि गुलबर्गा के ऊपर मौसम खराब है. ठीक है, अब जब गुलबर्गा के ऊपर मौसम खराब है तो अब जब यहाँ से आप राइट साइड डेविएट करोगे या लेफ्ट साइड डेविएट करोगे, आप किसी ना किसी रूट को कट करोगे. तो जब हम राइट साइड में कर रहे हैं, देन वी फाउंड कि गुलबर्गा को कट कर रहे हैं ओवर विस्की 120. गुलबर्गा से आसपास विस्की 120 को हम रूट को इंटरसेक्ट कर रहे हैं. सो जब हम कोई डेविएशन प्लान करते हैं और उस टाइम पे कोई रूट हमारे बीच में आ रहा है जो कि हमारे फ्लाइट प्लान का पाथ नहीं है, तो उस रूट का क्रॉसिंग क्लियरेंस मांगते हैं एटीसी से. तो हमने एटीसी को कहा कि विल क्रॉस विस्की 120 एट 1240, 12:40 पे हम विस्की 120 को क्रॉस करेंगे. तो जब भी कोई रूट क्रॉस करते हैं हम लोग दो चीज बोलते हैं, एक तो अल्टीट्यूड कि किस अल्टीट्यूड से क्रॉस करेंगे और किस टाइम क्रॉस करेंगे. सो आवर अल्टीट्यूड इज 110 ओनली, और 500 फीट ऐड हो गया, सो इट विल बी 115, राइट. तो 11,500 फीट पे और 12:40 पे हम
विस्की 120 को क्रॉस करने वाले हैं और वहां से फिर डायरेक्ट फ्लाई कर जाएंगे हैदराबाद के लिए। जब इतना दूर पहुंच ही गए हैं तो अब वापस क्या विस्की 28 ज्वाइन करूं, डायरेक्ट ही चल जाता हूं, राइट। तो हमने डिसाइड किया कि जब रूट क्रॉस हो ही गया है तो डायरेक्ट इस रूट को क्रॉस कर लेंगे एंड फ्लाई डायरेक्ट टू हैदराबाद। हैदराबाद हमारा नेक्स्ट टारगेट है, दैट इज नेक्स्ट एस्टीमेट है, दैट इज 1315, यानी फाइनली हम 1:15 हैदराबाद पहुंच जाएंगे। रिक्वेस्ट डेविएशन, पहले डेविएशन का क्लियरेंस एंड देन क्रॉसिंग क्लियरेंस, बोथ। इज दिस ओके? ओके, क्लियर? ठीक है, क्लियर। चलो सेम क्वेश्चन में अभी हमने इसमें राइट साइड में डेविएशन मांगा। अब देखो क्या होगा अगर वी डिमांड डेविएशन इन लेफ्ट साइड, ठीक है। सो उस केस में आएगा, जस्ट हैव अ लुक, वुड लाइक टू डेविएट 20 नॉटिकल माइल लेफ्ट ऑफ विस्की 28, ठीक है। विस्की 28 से लेफ्ट साइड में डेविएट कर लिए एंड फ्लाई डायरेक्ट टू विकाराबाद। ध्यान से देखो, विकाराबाद, विल फ्लाई डायरेक्ट टू विकाराबाद, एस्टिमेटिंग विकाराबाद करंट टाइम क्या है 1220, एस्टिमेटिंग विकाराबाद 1245 एंड फ्लाई वाया विस्की 19 टू हैदराबाद। रिक्वेस्ट परमिशन फॉर डेविएशन, आकाशा एयर 692। देखो ये वाला प्लान हमने क्या दिया, जब हम लेफ्ट साइड से ले रहे हैं डेविएशन तो हमने क्या देखा कि यहाँ पे एक छोटा सा एयरपोर्ट है विकाराबाद, तो क्यों ना गुलबर्गा को अवॉइड करके डायरेक्ट विकाराबाद चला जाए, यानी हम यहाँ से डायरेक्ट विकाराबाद का फ्लाइट ले ले रहे हैं। तो फ्लाई डायरेक्ट टू विकाराबाद, लेफ्ट साइड में डेविएट करेंगे और डायरेक्ट विकाराबाद चले जाएंगे। गुलबर्गा अवॉइड हो गया, गुलबर्गा के ऊपर मौसम खराब था तो गुलबर्गा अवॉइड हो गया। फिर विकाराबाद से ये रूट विस्की 19 इसको कैप्चर करके डायरेक्ट हैदराबाद चला जाएंगे एंड फ्लाई वाया विस्की 19 टू हैदराबाद। रिक्वेस्ट परमिशन फॉर डेविएशन। इज दिस क्लियर? क्लियर। आपका क्लियर है सबको? कंफर्म सर। ठीक है, सो दिस इज द कॉल दैट वी कैन यूज रिगार्डिंग द वेदर डेविएशन, ठीक है। Papa Romeo Kilo, weather deviation call clear? Yes, sir. ठीक है। Now, regarding weather deviation only, there is one more type of call came, जिसको बोलते हैं रीरूटिंग, कि अब हम छोटे छोटे डेविएशन नहीं करेंगे, डायरेक्ट रूट ही चेंज कर देने का। तो वो कैसे होगा, हैव अ लुक। जब आप ग्राउंड पे रहते हो, ठीक है, और तब आपको अगर पता चल गया कि सामने का मौसम खराब है तो उस केस में डेविएशन से काम नहीं चलता। When you are in the air, then you are having no option. You can only plan for deviation or rerouting, जो भी suitable हो। But जब आप when you are on ground and then you came to know कि वहां पे मौसम खराब है, तो उस केस में डेविएशन नहीं, डायरेक्ट रीरूटिंग। या फिर कुछ कुछ ऐसा एरिया रहेगा ना, जस्ट हैव अ क्लोज आई, कुछ कुछ ऐसा एरिया रहेगा, सपोज आपको यहाँ पे वेदर डेविएशन खराब हो, वेदर डेविएशन की करने की जरूरत पड़ी इस ग्रीन स्पॉट पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम वही उठाएंगे।
अब आप क्या देखते हो कि यहां से जब आप 15 नॉटिकल माइल लेफ्ट लेते हो तब तो आप सेफ हो, लेकिन राइट लिया तो विस्की 5-6 नॉर्थ को कट कर दिया। या फिर सपोज आप इस रूट पे फ्लाई कर रहे हो विस्की 5-6 नॉर्थ पे, एंड व्हेन यू आर एट ग्रीन स्पॉट, आप यहां से अगर लेफ्ट ले रहे हो तो विस्की 2-8 कट हो जा रहा है, राइट ले रहे हो तो 5-6 कट हो जा रहा है। तो इस केस में जहां पे आपके डेविएशन से कोई न दूसरा रूट इंपैक्ट हो रहा है तो बेटर है री रूट कर लेना। ठीक है, अगर हम यहां से फ्लाई कर रहे हैं और हमारा दूसरा रूट कट हो जा रहा है, तो जब दूसरा रूट इंटरसेक्ट हो ही रहा है, सो व्हाई नॉट वी गो फॉर री रूटिंग। ठीक है, तो क्यों ना हम रूट को ही छोड़ दें, डायरेक्ट ऐसे चले जाएंगे। क्लियर? समझ में आया? रीरूटिंग का सिनेरियो कब बनता है? व्हेन यू आर डेविएटिंग एंड यू आर इंटरसेक्टिंग सम रूट, तो व्हाई नॉट वी शुड गो फॉर रीरूटिंग इंस्टेड ऑफ आस्किंग अ डेविएशन। डेविएशन आपका छोटे लेवल पे हेल्प कर सकता है, बट रीरूटिंग कैन चेंज योर प्लान। इज दैट ओके? सर नहीं आई नीड समझ में फीडबैक आया। गाइज। चलो ठीक है, वेरी गुड। Like this only you need to say कि whether that is clear or not. Suppose you are at green spot on whiskey 5-6 north, ठीक है, whiskey 5-6 north के थ्रू at blue spot you are flying। ये दिख रहा है आपको चार्ट पे blue spot? हाँ। अब आपने क्या किया, जब आपने वेदर आपको बोला गया कि ये वाला एमआरपी अवकोर इसके ऊपर मौसम खराब है, तो जब आप लेफ्ट या राइट साइड में डेविएशन प्लान करते हो ना, तो आप क्या देखते हो कि आप जब डेविएट कर रहे हो तो आप किसी ना किसी रूट को इंटरसेक्ट कर दे रहे हो, राइट? आप अगर विस्की 5-6 नॉर्थ से लेफ्ट साइड में डेविएट करोगे तो विस्की 2-8 कट हो जा रहा है, राइट साइड करोगे तो विस्की 5-6 साउथ कट हो जा रहा है। डन? ऐसा पता चला आपको? तो जब आपके डेविएट करने से कोई दूसरा रूट डिस्टर्ब हो रहा है या कोई दूसरा रूट इंटरसेक्ट हो रहा है, उस केस में डेविएशन ना करके हम डायरेक्ट री रूटिंग कर लेंगे, रूट ही अपना चेंज कर लेंगे। क्लियर? हाँ सर। यस सर। एंड ये तो हो गया व्हेन यू आर इन एयर, जहां पे पहले आपने डेविएशन प्लान किया बट डेविएशन एक सुटेबल ऑप्शन नहीं था, तो आपने रीरूट कर लिया जब आप एयर में हो। लेकिन जब आप ग्राउंड पे हो तब अगर आपको पता चला कि रास्ते में कहीं पे मौसम खराब है, उस केस में भी आप रीरूटिंग करोगे, फिर आप डेविएशन का आइडिया ही नहीं लगाओगे। ग्राउंड पे अगर आपको पता चला कि मौसम खराब है तो रास्ता पहले ही चेंज कर लेने का, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि एग्जैक्ट आबकोर के ऊपर ही मौसम खराब रहेगा। अगर मौसम आबकोर के ऊपर खराब है सो दैट में स्प्रेड टुवर्ड्स और अवे, ये स्प्रेड भी हो सकता है। तो विस्की 5-6 नॉर्थ पूरा डेंजरस है। आपको अगर ग्राउंड पे ही पता चल गया कि रास्ते में मौसम खराब है तो विस्की 5-6 नॉर्थ छोड़ देने का, ट्राई सम अदर ऑप्शन। इज दैट ओके? यस सर। Other stations clear? क्लियर। कपड़ों में किलो? हाँ। ठीक है। या फिर रीरूटिंग में एक और ऑप्शन, जब आपके रास्ते में का 2-3 एमआरपी या फिर कोई एक लार्ज एरिया वेदर से अफेक्टेड हो, उस केस में भी रीरूटिंग करेंगे। तो रीरूट करने के कौन कौन से ऑप्शन? जब आपको डेविएशन कन्वीनियंट नहीं लगे, आपको लगेगा कि डेविएशन से अपना काम नहीं बनेगा, कैसे पता चलेगा? जब आप किसी रूट को इंटरसेक्ट कर दोगे, किसी दूसरे रूट को डिस्टर्ब कर रहे हो अपने डेविएशन में, या फिर लार्ज एरिया ऑफ योर करेंट रूट, ठीक है, लार्ज एरिया ऑफ करेंट रूट अफेक्टेड रहेगा,
या फिर जब आप ग्राउंड पे हो और आपको पता चला बैड वेदर ऑन रूट, रास्ते में आपका मौसम खराब है, तो इस केस में आप री रूट करोगे, फिर आप डेविएशन पे अटेम्प्ट नहीं लोगे। डेविएशन हम कब करते हैं? जब हम उस सिचुएशन में फंस चुके हैं कि हम तो नॉर्मल फ्लाई कर रहे थे, अचानक से यहाँ पे मौसम खराब लगा, तब हम डेविएशन करते। क्लियर? अगर आपको पहले ही पता है देन विल गो फॉर री रूटिंग। इज दैट ओके सो फार? यस। ठीक है। एंड आई फॉरगॉट टू से वन थिंग, जस्ट एवरीवन मेक इट करेक्टेड। जब हम डेविएशन प्लान देते हैं तो उस केस में हमारा ईटीए रिवाइज्ड ईटीए हो जाता है, दैट विल बी नॉट अ नॉर्मल ईटीए। ठीक है, दैट विल बी रिवाइज्ड ईटीए। आपके सारे एस्टिमेट्स रिवाइज हो जाएंगे। ठीक है, कैसे? हैव अ लुक। सपोज आपने पुणे से डेविएट करके ऑप्शन उठाया, तो जब आप पुराना पोजीशन रिपोर्ट दे रहे थे उस टाइम आपने बताया अटापो 1230, गुलबर्गा 1245 और ईटीए हैदराबाद, ठीक है, ईटीए हैदराबाद 1330। बट जब आपने डेविएशन प्लान उठाया, ठीक है, जब आपने रास्ते में कहीं डेविएट किया, मतलब आपने रास्ते में टाइम भी कंज्यूम किया एक्स्ट्रा, तो उस केस में आपका एस्टिमेट्स रिवाइज हो जाएगा। बोलोगे आप एस्टिमेटिंग ही, एस्टिमेटिंग अटापो चेंज कर दोगे 1245, गुलबर्गा 1300, रिवाइज्ड ईटीए हैदराबाद, रिवाइज्ड ईटीए हैदराबाद 1315, सॉरी 1345। देखो, इट मीन्स यू मीन टू से कि हमने जो अपने रूट में डेविएशन किया ना, इसके कारण हमको 15 मिनट टाइम लग गया, तो हमारा आगे का सारा एस्टिमेट्स प्लस 15 मिनट से रिवाइज्ड है। इज दैट ओके? ओके। ठीक है। सो फर्स्ट विल हैव अ लुक ऑन रीरूटिंग प्लान, कि जब आप रीरूटिंग करोगे करोगे तो उस टाइम पे कैसे कॉल जाएगा। जस्ट हैव अ लुक। क्वेश्चन रहेगा बहुत सिंपल, रिगार्डिंग योर पोजीशन एंड दैट में रिवाइज योर एस्टिमेट्स एज वेल। ठीक है, सो अभी मैं फ्रेश कॉल दे रहा हूं तो उसमें आप कंपेयर करके नहीं देख पाओगे कि एस्टिमेट्स रिवाइज कैसे हुआ, बट इन क्वेश्चन नंबर सेकेंड जहां पे आपने पोजीशन रिपोर्ट दिया है एंड इन क्वेश्चन नंबर थर्ड जहां पे आप डेविएशन प्लान कर रहे हो, तो आपने क्वेश्चन नंबर सेकेंड में सपोज बोला हुआ है कि पुणे का एस्टिमेट है हमारा 1230, अटापो है 1335, गुलबर्गा है 1420 और ईटीए हैदराबाद है 1530। ये आपने एस्टिमेट दिया हुआ है इन अ पोजीशन रिपोर्ट, जिसका आंसर आपने क्वेश्चन नंबर सेकंड में किया। और थर्ड क्वेश्चन आया डेविएट का, तो इस केस में आप अपने एस्टिमेट्स को रिवाइज करके इसके अलग बोलोगे। ठीक है, इससे अलग बोलोगे। इस थर्ड क्वेश्चन में आपका एस्टिमेट हो जाएगा एस्टिमेटिंग पुणे 1240, अटापो 1345, 10-10 मिनट से बढ़ा दो सबको, गुलबर्गा 1430, रिवाइज्ड ईटीए हैदराबाद 1540। ठीक है, कैसे पता चलेगा रिवीजन? जब आप दो क्वेश्चन को कंपेयर करोगे कि सेकेंड क्वेश्चन में जब एवरीथिंग वाज नॉर्मल, I was estimating Pune 1230, but now when we are deviating and we are estimating 10 minutes more, our revised estimates for Pune is 1240, for Atapo 1345, Gulbarga. Earlier Gulbarga was estimating 1420, now we are estimating at 1430. Earlier Hyderabad was estimating for 1530. Now we are estimating Hyderabad 1540. Is this clear, guys? क्लियर। Is that Yes, sir, clear? clear. Clear, sir. पक्का? पक्का सर। ठीक है. Then we'll plan for rerouting. How it goes? Just have a look on the question.
अभी क्या है, शुरू में ही हो आप। कई बार क्वेश्चन में भी लिख देगा प्लान रीरूटिंग, या फिर कई बार क्वेश्चन आपको आंसर करते टाइम पता चलेगा कि इसमें तो अपना डेविएशन से काम नहीं बन पाएगा, सो व्हाई नॉट फॉर रीरूट। ठीक है, सो जस्ट हैव अ लुक हाउ रीरूट कॉल विल गो। You are 40 nautical mile to Pune. Received bad weather warning on route. Try rerouting. क्वेश्चन में ही लिख देगा, या फिर नहीं लिखेगा तो डेविएट करते टाइम आपको अगर इनकन्वीनियंट लगे तब आप रीरूटिंग अटेम्प्ट करोगे। और ये जो आप वर्डिंग देखते हो ना, इसको इन रूट नहीं ऑन रूट पढ़ा जाता है, लिखा जाता है EN और बोला जाता है ऑन रूट। इसका मतलब होता है रास्ते में, बैड वेदर ऑन रूट, रास्ते में मौसम खराब है। क्लियर? आपके वे पॉइंट्स के रिगार्डिंग ये आता है ऑन रूट, रास्ते में का। ठीक है, सो यू हैड रिसीव्ड बैड वेदर ऑन रूट, पूरा का पूरा रास्ता गड़बड़ है, आना कुछ नहीं बोला। हो सकता है पुणे पे भी मौसम खराब है, थ्रू आउट द पुणे टू अतापो, गुलबर्गा, ऑल दोज रूट्स आर डिस्टर्ब्ड। तो आप क्या करोगे, इधर इधर आपको रीरूटिंग प्लान करना पड़ेगा। डन? हाउ दैट विल गो, हैव अ लुक। मुंबई कंट्रोल, नोट करो सब लोग। Akasa Air 692 on 125.9er, Boeing 737, Mumbai to Hyderabad. Current position 26 nautical mile outbound Mumbai. Flight level 2, correction, passing flight level 9er0 for flight level 210. Route Whiskey 28, radial 119er. Time now 1115. Received bad weather warning on route. Would like to, क्या चाहते हो भैया? Would like to, क्या? Would like to reroute. ठीक है, would like to reroute via Whiskey 56 North. Whiskey 56 North के थ्रू रीरूट करेंगे via Whiskey 56 North and Whiskey 120 विकाराबाद Whiskey 19er। देखो इस रूट के इंफॉर्मेशन को मैंने कैसे बोला, Whiskey 56 नॉर्थ के थ्रू रीरूट करूंगा, फिर जहां पे Whiskey 56 नॉर्थ खत्म हो जाएगा तो Whiskey 120 यानी ये वाला रूट पकड़ लूंगा, क्योंकि हमको जाना है टुवर्ड्स हैदराबाद। तो Whiskey 56 नॉर्थ पूरा ट्रेवल करके मैं क्या करूंगा, ठीक है, तो Whiskey 56 नॉर्थ, Whiskey 120 कहां तक हमको ले जाएगी, विकाराबाद तक। तो Whiskey 120 विकाराबाद, फिर विकाराबाद से Whiskey 19er। ये रहेगा हमारा रीरूट प्लान। इज दैट क्लियर गाइस? ओके, सो वुड लाइक टू रीरूट वाया, हाँ हाँ सर विस्की बोलो। 28 हम वहाँ नहीं ले सकते जहाँ आप क्रॉस कर रहे हैं विस्की 28? यस यू कैन गो, ठीक है, यू कैन गो फॉर इट, वेरी गुड। Whiskey 56 North, whatever you want. Whiskey 56 North, Whiskey 120, Whiskey 28, ले लो, ठीक है, गो फॉर इट।
इसमें इज दैट क्लियर? हाँ, इसमें करंट पोजीशन मुंबई से लिया है, लेकिन क्वेश्चन पुणे वाला था। ठीक है, तो मैंने चेंज किया ना, अच्छा, वी वो मतलब फाउंड ये, और अच्छा वो रेडियल, हाँ, मतलब ये हमने अलग लिया है। एस्टिमेट किया कि वी आर टू क्लोज फ्रॉम मुंबई, तो हमने ओके। उसी को रिपोर्ट कर दिया, चलेगा। ठीक है, अच्छा, रेडियल भी हमने इसीलिए चेंज किया। ओके, चलेगा ये ना। हम्म। तो अभी तो बाकी है, अभी तो हम बस पहले प्लान दे रहे हैं, राइट। वुड लाइक टू रीरूट वाया एज अल्फा जूलियट डेल्टा सेड विस्की 56 नॉर्थ, विस्की 120 एंड विस्की 28। अब देखो, आप अभी कहां पे थे? टू, ये 40 नॉटिकल माइल का पहला आर्क है, राइट। तो आप अभी 26 नॉटिकल माइल आउटबाउंड मुंबई हो, यहां पे आपको विस्की 56 नॉर्थ पे आना है। कैसे आओगे? क्या वापस मुंबई को ज्वाइन करके आओगे? नहीं, आप डायरेक्ट फ्लाइंग कर सकते हो। डायरेक्ट फ्लाइंग परमिशेबल है, लेकिन वो लार्ज एरिया में नहीं, छोटे सेक्टर में। आप पुणे पे फ्लाई कर रहे हो, पता चला यहाँ पे मौसम खराब हो गया, तो आप डायरेक्ट आवकोर आ जाओ। ठीक है, तो इतना दूर डायरेक्ट फ्लाइंग कर सकते हो। आप आवकोर के ऊपर फ्लाई कर रहे हो, पता चला रास्ते में मौसम खराब है, डायरेक्ट एपकोस आ जाओ, चलेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि मुंबई से हैदराबाद जाना है और हम डायरेक्ट फ्लाइंग कर रहे हैं, नो। लार्ज एरिया में डायरेक्ट फ्लाइंग परमिसेबल नहीं है, छोटे सेक्टर्स में। तो हमने क्वेश्चन में क्या लिखा? वुड लाइक टू रीरूट वाया विस्की 56 नॉर्थ, विस्की 120 एंड विस्की 28। ये तीनों रूट रहेगा हमारा, ये वाला प्लान। ठीक है, ये वाला प्लान। तो इसको हम लोग बताएंगे अपना एस्टिमेट सब, ठीक है। वाया, ठीक है, विस्की 56 नॉर्थ कैसे क्रॉस करोगे, कैसे कैप्चर करोगे? वाया फ्लाइंग डायरेक्ट टू विस्की 56 नॉर्थ, यानी अभी हम विस्की 28 पर हैं, विस्की 56 नॉर्थ डायरेक्ट फ्लाइंग करेंगे। तो अब बताओ सारे एस्टिमेट्स। एस्टिमेटिंग, सबसे पहला एस्टिमेट आपका क्या होगा? विस्की 56 नॉर्थ इटसेल्फ, पहले आप इसी को ज्वाइन कर रहे हो। एस्टिमेटिंग विस्की 56 नॉर्थ 1120, विस्की 120 1230, विस्की 28 1315, रिवाइज्ड ईटीए हैदराबाद 1335। अब इस केस में जब आप रीरूटिंग का कॉल देते हो, तो ध्यान से, खाली रिवाइज्ड ईटीए से आपका काम नहीं चलेगा। डेविएशन में ओनली रिवाइज्ड ईटीए, बट व्हेन यू आर प्लानिंग फॉर रीरूटिंग, तो इस केस में आपको दो चीज और बताना पड़ेगा। क्या? टोटल एस्टिमेटेड इलैप्स्ड टाइम। याद करो फ्लाइट प्लान, जब हमने बताया था कि आपके टोटल प्लान का टाइमिंग क्या है, कितने देर का फ्लाइट आप ऑपरेट करना चाहते हो। तो हमने पहले प्लान किया था कि हमारा टोटल एस्टिमेट्स मुंबई से हैदराबाद जाने में सपोज, ठीक है, मुंबई से हैदराबाद जाने में सपोज 2 घंटे लग रहे थे, बट रास्ते में हमको रीरूट करना पड़ा या डेविएशन करना पड़ा, तो अब लग रहे हैं 2 घंटे 35 मिनट। देखो कैसे पता चलेगा? योर एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल माइनस योर डिपार्चर टाइम, so it will give you total estimated elapsed time. Is this clear? टोटल ईटीए क्या है आपका? 13:35, डिपार्चर टाइम है 11 बजे, यानी 2 घंटे 35 मिनट का आपका टोटल फ्लाइट टाइम है। तो जब आप रीरूटिंग कॉल करते हो, दैट टाइम यू विल रिपोर्ट क्या? टोटल एस्टिमेटेड इलैप्स्ड टाइम 0235। इंड्योरेंस, इंड्योरेंस क्या होता है कि आपके एयरक्राफ्ट में फ्यूल लोड कर दिया, अब आपका एयरक्राफ्ट टोटल कितना फ्लाई कर सकता है? 0300, यानी हमारा जहाज टोटल 3 घंटा फ्लाई कर सकता है इन द एयर, बट हमारा डेविएशन के बाद भी टोटल एस्टिमेटेड फ्लाइट टाइम 2 घंटा 35 मिनट का ही निकला। रिक्वेस्ट रीरूटिंग क्लियरेंस, अब हमको रीरूटिंग का क्लियरेंस दे दीजिए। ठीक है,
request rerouting clearance Akasa Air 6902। अगर आपका फ्लाइट टाइम आपके इंड्योरेंस से ज्यादा हो जाएगा तो आपको रीरूटिंग का परमिशन नहीं मिलेगा। इसीलिए टोटल एस्टिमेटेड इलैप्स टाइम से आधा घंटा या 1 घंटा इंड्योरेंस हमेशा ज्यादा ही बताना। दो इंड्योरेंस इज ए हाइपोथेटिकल डेटा हेयर, आप अपने मन से बोल रहे हो, इसीलिए हमेशा टोटल एस्टिमेटेड इलैप्स टाइम में से आधा घंटा ऐड करके आप बोल दो। इज दिस कॉल क्लियर टू ऑल? सबको समझ में आया रीरूटिंग वाला प्लान? ये टोटल एस्टिमेट टाइम वाला भी कॉल में हमें बोलना पड़ेगा कि सिर्फ एंड्योरेंस बोल दो, रिवाइज्ड ईटीए एंड Yes. एंड्योरेंस? नहीं, बोथ टोटल एस्टिमेटेड इलैप्स्ड टाइम आपको बोलना पड़ेगा, ठीक है, विच विल बी योर ईटीए माइनस द डिपार्चर टाइम, दोनों बोलना पड़ेगा। क्लियर? टोटल एस्टिमेटेड इलैप्स्ड टाइम, इसको ये Is लिख that सकते clear हैं to all? TEET। बिल्कुल यही लिख सब- सकते हैं, तभी तो मैं ठीक है, स्क्रीन पे बार बार लिख रहा हूँ। हाँ, ओके ओके ओके। तभी तो मैं स्क्रीन पे बार बार लिख रहा हूँ। अल्फा जूलियट डेल्टा पापा रोमियो किलियो, इज दिस क्लियर? यस सर। सर ठीक है, हाँ हाँ, सर जब हम डेविएशन कर रहे हैं बोलो बोलो। उस जब हम डेविएशन कर रहे हैं तो उस समय टोटल एस्टिमेटेड वाला नहीं कर सकते, टोटल एस्टिमेटेड इलैप्स टाइम नहीं बताना। नहीं, इसकी इसकी बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्यों? क्योंकि देखो डेविएशन में क्या होता है, सपोज अच्छा चलो, आई वॉज गेटिंग अ वेरी बैड एग्जाम्पल टू से, बट लेट मी से चलो, यू आर अ यूथ, ठीक है, बट सपोज यू कंज्यूम अल्कोहल, ठीक है, यू कंज्यूम अल्कोहल, ठीक है, वन पर्सन हु इज कंज्यूमिंग अल्कोहल डेली, बट समवन इज कि वो सिर्फ ओकेजन पे ड्रिंक कर रहा है, ऑन अ सोशल ओकेजन लाइक होली और दिवाली। तो जो डेली पी रहा है और जो वंस इन ओकेजन पी रहा है, उन दोनों में डिफरेंस है ना। जो ओकेजनली पी रहा है आप उसको ये नहीं बोल सकते हो कि यू कंज्यूम अल्कोहल और यू आर अल्कोहलिक, उसको आप नहीं बोलते हो। बट जो डेली कंज्यूम कर रहा है उसको आप बोल देते हो यू आर अल्कोहलिक। सिमिलरली जब आप डेविएशन कर रहे हो, सो यू आर नॉट अ टारगेट रीरूटर। आप अपने फ्लाइट प्लान से जा रहे थे, रास्ते में कुछ ऐसा प्रॉब्लम आया कि आपको अपने रूट से बस थोड़ा सा चेंज करना पड़ा, वापस आपने अपने रूट को कैप्चर कर लिया। ये एक मेजर प्रॉब्लम नहीं है, तो ये एक माइनर डेविएशन है। इसमें आपको 15 से 20 मिनट या मैक्सिमम आधा घंटा का प्लान चेंज होता है। ना तो कोई एस्टिमेट चेंज हुआ, ना ही कोई दूसरा प्लान चेंज हुआ, कुछ नहीं। बट जब आप रीरूट करते हो उस केस में पूरा का पूरा प्लान चेंज है आपका। क्या पता विस्की 5-6 नॉर्थ फुल्ली ऑक्यूपाइड हो, आप पहले जा रहे थे गुलबर्गा के साइड से, तो गुलबर्गा को रिपोर्ट किया गया था कि एक जहाज आएगा, पुणे को रिपोर्ट किया गया था कि एक जहाज आएगा, आया ही नहीं। तो इतने सारे एस्टिमेट्स को आपने चेंज कर करके दूसरा रूट प्लान किया, तो दैट इज अ मेजर चेंज। इन दैट मेजर चेंज आपको टोटल एस्टिमेटेड इलैप्स टाइम चेंज हो जाता है, ठीक है। आधे घंटे तक के डेविएशन, 20 मिनट तक के डेविएशन पे ज्यादा अंतर नहीं रहता है, ठीक है, बट मोर देन 30 मिनट्स टोटल एस्टिमेटेड इलैप्स टाइम चेंज किया जाता है। क्लियर? और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हमने बोल दिया ईटीए हैदराबाद 1335 तो 13335 पे हमको लैंड करना ही है। नो, 15 मिनट तक का डेविएशन तो हमारा परमिसेबल है, मैकेनिकल डिले, ठीक है। अगर हमारा ईटीए 1335 है 1335 तो 15 मिनट अप डाउन तो हमारा फ्री है। 15 मिनट पहले या 15 मिनट लेट हम जा सकते हैं, चलेगा। आपको ऑफिस रिपोर्ट करना 9 बजे, कई बार आप 9:30 जाते हो, कई बार आप 8:30 जाते हो। सो एस्टिमेट्स और डेविएशन में थोड़ा चेंज आता है, तो उस केस में हम टोटल एस्टिमेटेड इलैप्स टाइम
नहीं रिपोर्ट करते हैं, लेकिन जब हम रीरूट करते हैं तो उस टाइम पे हमको रिपोर्ट करना पड़ता है टोटल एस्टिमेटेड इलैप्स टाइम एज वेल एज इंड्योरेंस, जो कि डेविएशन के टाइम पे जरूरी नहीं है। इज दैट क्लियर नाउ? यस सर, क्लियर। ठीक है। So this is the case of rerouting and deviation. When we'll do practice more, your answer type will improve. ठीक है, जब हम लोग कल फर्दर प्रैक्टिस करेंगे आपके आंसर करने का मेथड और आपकी अंडरस्टैंडिंग और इंप्रूव होगी। इज दिस क्लियर सो फार? समझ में आया सबको? एंड होप यू Affirm. ऑल हैव रिटन द आंसर्स एज वेल, क्योंकि मैंने तो अभी मिटा दिया, वाइप अप कर दिया। या लिख डन। लिया। सो विल मूव टू द लिख लिए नेक्स्ट, सर। we'll move to the next topic. Done. Very good. We'll move to the next topic after this. ठीक है, और अगर आपको डेविएशन प्लान करना था, मैंने कल बताया था ऑन पेज नंबर 24 it was there. So if you want to practice on that, page number 24 and the previous year question. Now, the next topic in front of us is RVSM. We need due diligence. ठीक है, आप लोगों का focus requirement है and requires regular feedback. If you are not a noisy environment, please unmute yourself for next 15 minutes. ठीक है, हम लोग RVSM में थोड़ा लेंदी कॉन्सेप्ट है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, सो आई विल रिक्वायर फीडबैक। फॉर दैट एक ब्रेक भी लेते हैं और उसके बाद हम लोग RVSM कंटिन्यू करेंगे। विल मीट अगेन एट 2215। ठीक है, टेक अ ब्रेक फॉर 7 minutes and we'll continue after 7 minutes. Done. The next topic is RVSM. तब तक के लिए चाय पानी कॉफी whatever is available with you, you can have that. ठीक है, 10:15 में हम लोग मिलते हैं वापस।
Okay, am I audible to everyone? All stations, Delhi Tower. Am I audible? Delhi Tower, Radio 5, Victor Tango, Sierra Oscar Hotel. What about others? Papa Romeo Kilo, Alpha Juliet Delta. Have you came? Yes, yes, ठीक है. Confirm if screen is yes, visual. sir. Screen share हो रहा है? ठीक है. Now, the topic is RVSM. ठीक है. If you are a B2 trainee or B2 candidate, then be ready for this topic, RVSM. Very interesting topic, very easy to understand, and this is one of the important topic for part 2 as well. ठीक है. That's why I am taking some time to explain this. हालांकि RVSM का यूज करके क्वेश्चन आंसर बहुत ही ज्यादा सिंपल है. Still, I'll explain this term because it is important for part 2. ठीक है. Now, before going ahead, please do let me know what do you all mean by RVSM. आप लोगों में से RVSM के बारे में किसको पता है और क्या पता है? Please tell me. If someone knows anything, बताओ. Yes, please do let me know. तभी तो मैं बता पाऊंगा कि how much you need to know further. Go ahead, please. आप लोगों को कितना पता है RVSM के बारे में, क्या है? Please, anyone? एक क्राइटेरिया होता है आरवीएसएम में, कुछ इक्विपमेंट्स अगर एयरक्राफ्ट में इंस्टॉल है, वो एग्जैक्टली इक्विपमेंट्स का नेम नहीं पता है मुझे. अगर वो इंस्टॉल है तो वो आरवीएसएम एयर स्पेस में उड़ सकते हैं. It means 2000 flight for the similar direction and 2000 feet for similar or 4000 for मतलब 4000 for another feet. तो फ्लाइट लेवल 29,000 to 41,000 के बीच में, और उनके पास आरबीएसएम इक्विपमेंट लगे हुए हैं. और इक्विपमेंट के नेम मुझे एक्चुअली याद नहीं है. वो अगर उसमें है ठीक है, एयरक्राफ्ट में कोई तो वो बात. आरबीएसएम उड़ सकते हैं. Okay. Any other station? Alpha Juliet Delta. सर ये यस सर ये रिड्यूस वर्टिकल सेपरेशन मिनिमम होता है. क्या अपना ट्रांसपोंडर एंड प्राइमरी अल्टीमीटर जो होती है, ये इंडिकेट करता है कि अगर हमारे कोई भी जो एक क्राइटेरिया दिया गया कि 2000 फीट नीचे और 2000 फीट ऊपर कोई भी एयरक्राफ्ट नहीं रहना चाहिए, तो अगर कोई एयरक्राफ्ट आता है तो वो इंडिकेट करता है कि हाँ ये एयरक्राफ्ट आ रहा है. कलूजन से बचाता है. आकाश सिस्टम होती है एयरक्राफ्ट कम्युनिकेशन एंड सॉरी सर आकाश सिस्टम होती है. ये क्या करता है कि कलूजन से बचाता है एक को ऊपर जाने के लिए और एक को नीचे जाने के लिए. अगर सेम पाथ पे आ रहे हैं तो वो डेविएट करता है. और विदाउट आकाश सिस्टम आरवीएसएम में अलाउड नहीं है. ठीक. और फ्लाइट लेवल 310 पापा रोम 0 नो 310 नहीं 2980. यस सर 2980 से लेकर 410. ठीक. पापा रोम किलो, how much you knows about RVSM? सर इतना ही पता है कि होता कुछ एक फ्लाइट लेवल होती है 290 से 410 तक. उसमें मतलब कि 2000 या फिर 1000 फीट तक कि कोई दूसरा एयरक्राफ्ट आए तो उसमें अलर्ट आ जाती है अपने एयरक्राफ्ट में कि आ रहा है कोई मतलब एयरक्राफ्ट सामने से. कुछ क्राइटेरिया होते हैं जो कि फुलफिल करने के बाद ही आरवीएसएम ऐसा कुछ टैग लगते हैं शायद. मतलब याद नहीं मुझे, जीएमआर में कुछ तो बताया था. चल ठीक है, कोई. इट्स ओके. नाउ सबसे पहले RVSM मींस reduced vertical separation minimum या minima. Reduced vertical, please note the full form and note all the terms which looks important to you. मैं जो भी बोलूंगा अगर उसमें से कुछ भी आपको important लगे, so note down in your paper. If you need to repeat anything, please do let me know कि सर एक बार और repeat करो, मैं इसको note down करूंगा. ठीक है. Reduced vertical separation minima या minimum, whatever you want to say you can say. ठीक है. Minima
या फिर मिनिमम। नाउ रिड्यूस्ड वर्टिकल सेपरेशन मिनिमम, मैं बोल रहा हूं रिड्यूस्ड, ठीक है। जैसे मैं आपको बोलूंगा कि मेरा वेट कम हो गया है, ठीक है, थोड़ा कम हो रहा है, तो आप बोलोगे ना कि पहले कितना थे, राइट। कि इफ आई एम सेइंग कि दिस इज द रिड्यूस्ड, देन व्हाट इज द फुल, व्हाट इज द फुल कैपेसिटी देन? सो द कंडीशन इज कि एनी एयरक्राफ्ट which is flying in the airspace shall have at least 2000 feet of vertical separation, 2000 feet का vertical separation, any two aircraft. This is known as CVSM or conventional vertical separation minimum. conventional, पहले पुराने टाइम पे क्या था कि अगर कोई दो एयरक्राफ्ट फ्लाई करेगा एक डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में, तो कम से कम 2000 फीट का उसमें गैप होना चाहिए। और अगर सेम डायरेक्शन में फ्लाई करेगा, लुक एट दिस डायग्राम, इफ दे आर फ्लाइंग इन द सेम डायरेक्शन इट शुड हैव 4000 फीट ऑफ सेपरेशन एंड इन अपोजिट डायरेक्शन 2000 फीट ऑफ सेपरेशन। इससे क्या होता था कि कोई भी दो एयरक्राफ्ट फ्लाई करते थे विद द डिफरेंस ऑफ 2000 फीट। फिर क्या हुआ, ट्रैफिक बढ़े, रिक्वायरमेंट बढ़ी, बट एयर स्पेस लिमिटेड रह गया, ठीक है। तो नॉन NRVSM क्या कहता है, 4000 फीट फॉर सेम डायरेक्शनल एंड 2000 फीट फॉर अपोजिट डायरेक्शन एयरक्राफ्ट। नॉन RVSM एयर स्पेस मीन्स बिलो 29,000 फीट और अबव 41,000 फीट, हर कोई एयरक्राफ्ट इसी सेपरेशन से फ्लाई करेगा। बट क्या हुआ, फ्लाइट लेवल 290 टू फ्लाइट लेवल 410, 29,000 फीट से लेके 41,000 फीट, ये वाला एयर स्पेस, इसमें ट्रैफिक बढ़ने लगी। क्यों ट्रैफिक बढ़ने लगी, इसके पीछे का क्या रिक्वायरमेंट है, हैव अ लुक, अच्छे से समझो। 28,000 फीट पे अपना ट्रोपोस्फेयर खत्म हो जाता है, राइट, ट्रोपोस्फेयर खत्म। तो जो हमारा इनिशियल अल्टीट्यूड ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर है, ठीक है, इनिशियल अल्टीट्यूड ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर, वहां पे एयरक्राफ्ट फ्लाई करता है पूरा स्मूथली, लेस डस्ट पार्टिकल, ठीक है, टेम्परेचर मिनिमम, क्लियर वेदर और क्लीन एयर, ठीक है। आपके एयरक्राफ्ट पे किसी भी टाइप का एडवर्स इफेक्ट नहीं पड़ेगा स्ट्रक्चर पे, क्योंकि वहां पे डस्ट पार्टिकल मिनिमम्स है, एयर बहुत ज्यादा कम डेंस है, तो आपके एयरक्राफ्ट पे ड्रैग भी नहीं पड़ेगा, यानी आपका एयरक्राफ्ट फ्यूल एफिशिएंसी भी मैक्सिमम देगा। डन। तो सबको 29,000 फीट से लेके 41,000 के बीच में फ्लाई करना है। क्यों, एक तो आपका स्ट्रक्चर का लाइफ लॉन्ग हो गया कि जो कि आपके एयरक्राफ्ट पे मिनिमम ड्रैग देगा, डस्ट पार्टिकल कम है तो स्ट्रक्चर पे लोड कम आएगा, इंपैक्ट कम आएगा, फ्यूल एफिशिएंसी मैक्सिमम। तो जो आपके कैरियर हैं, कैरियर मींस एयरलाइनर्स, इंडिगो, विस्तारा, कतर एयरवेज, यूनाइटेड, लुफ्थांसा, दीज एयरलाइनर्स एयरक्राफ्ट, उनको क्या करना है, उनको बिजनेस करना है, उनको पैसा कमाना है, एंड फ्यूल इज टेकिंग वन ऑफ द लार्ज कॉस्ट ऑफ एनी ऑपरेशन। तो फ्यूल सेविंग हो गया, एयरक्राफ्ट का लाइफ बढ़ रहा है, तो वो तो अपने पैसेंजर को लेके हमेशा इसी एयर स्पेस में फ्लाई करेंगे ताकि उनका एयरक्राफ्ट ज्यादा दिन तक टिके, लेस मेंटेनेंस डिमांड हो और पैसा भी बचे। तो सबको 29,000 फीट से लेके 41,000 फीट के बीच में ही आना है ताकि कॉस्ट सेविंग हो पाए। प्लस एयरलाइनर्स ने क्या देखा कि ये वाला एयर स्पेस सेफर है, तो उनके जितने भी एयरक्राफ्ट बनते हैं, ठीक है, जितने भी एयरलाइनर्स हैं, बोइंग, एयरबस, उन सब का ऑप्टिमम, ऑप्टिमम का मतलब होता है हर साइड से बेस्ट, हर एक पैरामीटर में बेस्ट। तो जो उनका ऑप्टिमम ऑपरेशन टाइप है वो 29,000 फीट से लेके 41,000 फीट के बीच में ही आता है। और आई थिंक एयरबस या बोइंग, ये सब एयरक्राफ्ट 41-43,000 के ऊपर जा भी नहीं सकते हैं, उनका सीलिंग अल्टीट्यूड भी 41-43 नहीं होता है। व्हाट इज द सीलिंग अल्टीट्यूड फॉर एयरबस? अल्फा जूलियट डेल्टा
फ्लाइट लेवल सर 447 कुछ 450 है सर, आई थिंक 320। ठीक है, ऑलमोस्ट वही रहता है, आई टेल यू। ठीक है, 4345 टू 47 ये सब मैक्सिमम अल्टीट्यूड है, इससे ऊपर वो एयरक्राफ्ट जा ही नहीं सकता है। सो आपका ऑपरेशन कभी भी मैक्सिमम से थोड़ा डाउन ही होता है, यानी वो सारे एयरलाइनर्स, एयरक्राफ्ट, बोइंग, एयरबस इसी एयर स्पेस में मारामारी करेंगे। तो जब सबको इसी एयर स्पेस में फ्लाई करना है, इतना सारा ट्रैफिक हैंडल कैसे होगा? ठीक है, 2-2 हजार फीट का गैप रख के इसी एयर स्पेस में इतने सारे ट्रैफिक को हैंडल करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। तो सबने मिलके प्रेशर बनाया, किस पे? रेगुलेटर्स पे। जैसे अपने यहाँ पे डीजीसीए है, उधर इयासा, फा, इन पे प्रेशर बना कि भाई आपने जो रूल डिसाइड कर दिया कि दो एयरक्राफ्ट के बीच में कम से कम 2000 फीट का गैप रहेगा, तो उड़ाऊंगा कैसे और पैसा नहीं कमाऊंगा तो तुम्हारा घर कैसे चलेगा? तो सबने मिलके प्रेशर बनाया और सीवीएसएम को स्लाइस करके हाफ कर दिया। तो सीवीएसएम बन गया आरवीएसएम, रिड्यूस कर दिया गया। किसको? वर्टिकल सेपरेशन को। पहले जहां पे दो सेम डायरेक्शनल एयरक्राफ्ट shall have fly 4000, now two same directional aircraft can operate for 2000 feet, and two non-directional aircraft shall have minimum separation of 1000 feet at least. इससे क्या हुआ कि कोई भी दो एयरक्राफ्ट कम से कम 1000 फीट का सेपरेशन मेंटेन कर रहा था। पहले जहां पे 2000 फीट कम से कम, अभी यहाँ पे 1000 फीट कम से कम। इज दिस क्लियर टू ऑल? क्लियर। बट जब आप कभी रेगुलेटरी पे प्रेशर बनाओगे या रेगुलेटरी से ऑपरेशन की डिमांड करोगे, सो रेगुलेटरी बॉडी विल इम्पोज सर्टेन कंडीशंस रिगार्डिंग टेक्निकल एंड डॉक्यूमेंटेशंस। ऐसे वो हमारा क्या कहते हैं, रिलेटिव तो लगता नहीं है कि बोलेगा हाँ भाई तुम फ्री हो। उसने कंडीशन डाला कि अगर आपको इस एयर स्पेस में फ्लाई करना है तो आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा हमसे। किस चीज का? आरवीएसएम का। और जो भी आपके एयरक्राफ्ट का ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है, जो भी आपके एयरक्राफ्ट का मैन्युफैक्चरर है, वो भी इंश्योर करके देगा कि आपका एयरक्राफ्ट आरवीएसएम में फ्लाई करने के लिए फिट है। यानी टेक्निकल क्लियरिटी कौन देगा? एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर। और डॉक्यूमेंटेशन क्लैरिटी हम देंगे। अगर आपका एयरक्राफ्ट फिट टू फ्लाई अंडर आरवीएसएम है, इट डजंट मीन कि आप आरवीएसएम एयरस्पेस में एंटर कर जाओगे। आपको अगर आरवीएसएम में फ्लाई करना है तो पहले हमसे आके अप्रूवल लो। अप्रूवल देते टाइम हम चेक करेंगे कि आपके एयरक्राफ्ट में कुछ सर्टेन इक्विपमेंट्स लगे हैं कि नहीं। अगर वो इक्विपमेंट लगे हैं और वो सर्विसेबल है, तभी आपके एयरक्राफ्ट को आरवीएसएम का अप्रूवल मिलेगा। दो योर एयरक्राफ्ट इज कैपेबल टू फ्लाई अंडर आरवीएसएम, यू कैन नॉट एंटर विदाउट अप्रूवल फ्रॉम रेगुलेटरी बॉडी। इज दिस ओके? तो आपको अप्रूवल चाहिए आरवीएसएम का। कौन देगा? डीजीसीए। कहां पे लिखा हुआ है कि आपको आरवीएसएम का अप्रूवल लगेगा? सीआर सेक्शन 8 सीरीज एस पार्ट 2, यहां पे डिटेल दिया हुआ है कि आरवीएसएम का मतलब क्या है। अगर आपको आरवीएसएम का अप्रूवल लेना है तो कौन सा डॉक्यूमेंट अप्लाई करके देना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है, कौन कौन से टेक्निकल एविडेंसेस आई विल रिक्वायर कि आपके एयरक्राफ्ट में ट्रांसपोंडर है कि नहीं, आपके एयरक्राफ्ट में ऑटो पायलट है कि नहीं, आपके एयरक्राफ्ट में इकाश और टीकैस है कि नहीं, ये हम देखेंगे, तब जाके आपको अप्रूवल देंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया इस एयरस्पेस में फ्लाई करने की बात। अब आते हैं बिजनेस जेट, प्राइवेट जेट्स। इनके पास बहुत पैसा है, ठीक है, और इनके एयरक्राफ्ट बोइंग एयरबस से ज्यादा सोफिस्टिकेटेड। ठीक है, हमेशा जो आपके पब्लिक कैरियर बस होते हैं उनसे ज्यादा महंगे और उनसे ज्यादा टेक्निकल एडवांस आपके कार होते हैं, राइट। तो हमेशा ये जो बिजनेस जेट्स एयरक्राफ्ट हैं, प्राइवेट जेट, ये बोइंग एयरबस के रिस्पेक्ट में टेक्निकलिटी में तो सुपीरियर है। ठीक है, इनकी टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स, इनके इक्विपमेंट्स ज्यादा महंगे हैं और ज्यादा अच्छे हैं। तो इन्होंने क्या दिमाग लगाया कि हम एक काम करते हैं,
29,000 फीट से 41,000 फीट में प्रॉब्लम है ना सबको। हम ऐसा जहाज बनाएंगे कि 41,000 के ऊपर निकल जाएंगे। जहां पे बोइंग एयरबस स्ट्रगल करता है, हमारा एयरक्राफ्ट जाएगा 50-55। ठीक है। सो दीज बिजनेस जेट्स दीज कैन फ्लाई टिल 50-55,000 फीट। यानी ये बनने लगे होशियार के हमारे पास पैसा बहुत है, हमको फ्यूल नहीं बचाना है। ठीक है, हम बहुत कमाते हैं, हम ऊपर से फ्लाई करेंगे, आप लोगों के ऊपर से, हमको इस झोल झक्कर में नहीं पहुंचना है। तो डीजीसी ने कंडीशन लगाया कि चाहे आप इस एयर स्पेस में फ्लाई करो या फिर इसको क्रॉस करके ऊपर निकलो, अप्रूवल आपको दोनों ही केस में चाहिए। यहां पे ये फंस गए। ठीक है, पब्लिक कैरियर इस एयर स्पेस में फ्लाई करती है पैसे बचाने के लिए, और प्राइवेट जेट इसमें क्रॉस करते हैं अपनी कंडीशंस को देखते हुए, टाइम सेविंग के लिए, कि इसने ट्रैफिक में नहीं फंसना है, ऊपर निकल जाता हूं। तो दोनों ही केस में लग गए कंडीशन कि चाहे आप इसमें उड़ो या इसको क्रॉस करो, आपको आरवीएसएम का अप्रूवल लगेगा ही लगेगा। इज दैट क्लियर सो फार? क्लियर। ठीक है, मगर अब अगर आती है किसी एयरक्राफ्ट बात, को 29,000 से ऊपर उड़ना है तो उसे आरवीएसएम अप्रूव होना ही होना है। हाँ, उसको आरवीएसएम होना है। ठीक है, above 29,000 feet if you want to fly you should definitely have RVSM approval। ठीक है, अब आती है बात कि डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट क्या है। सबसे पहले डीजीसी ने बोला कि आपका अप्रूवल लेते टाइम हम क्या क्या चेक करेंगे। उसने बोला कि आपके क्रू, ठीक है, आपके क्रू, पायलट प्लस इंजीनियर, इन दोनों की ट्रेनिंग होनी चाहिए आरवीएसएम के ऊपर। यानी इनको पता होना चाहिए कि आरवीएसएम है क्या, किस फ्लाई जोन में फ्लाई करते हैं, कौन कौन से इक्विपमेंट सर्विसेबल चाहिए, और बिफोर रिलीजिंग द फ्लाइट दे विल चेक कि जो सारा इक्विपमेंट आरवीएसएम में फ्लाई करने के लिए मैंडेटरी है, क्या वो सर्विसेबल है कि नहीं। अगर वो सर्विसेबल है तभी आपका फ्लाइट आरवीएसएम रिलीज होगा, नहीं तो इंजीनियर उसको रोक देगा कि ये वाले फ्लाइट में आप 29,000 फीट के ऊपर नहीं जाओगे। अप्रूवल तो 1 साल में एक बार मिलता है, अगर बीच में कोई कंपोनेंट खराब हो गया तो कौन बताएगा? इंजीनियर। क्लियर? तो डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट हो गई, ट्रेनिंग ऑफ द क्रू। अब आई टेक्निकल रिक्वायरमेंट। टेक्निकल रिक्वायरमेंट क्या बोलती है कि आपके एयरक्राफ्ट में 2 इंडिपेंडेंट अल्टीट्यूड मेजरमेंट सिस्टम होनी चाहिए। Why altitude measurement system is important? Because you need to maintain your altitude without collision, that 2,000 feet close to each other। आपने वेक टर्बुलेंस वाले केस में देखा ना कि कैसे चैलेंजर 604 एयरबस 320 एयरबस 380 के 1000 फीट नीचे भी पलटी मार दिया। आप सबने नोट किया था वो वाला पिक्चर जो मैंने दिखाया? Have you all gone through that? So you can easily observe कि 1000 फीट का सेपरेशन सेफ नहीं है बहुत सारे एयरक्राफ्ट के लिए। स्टिल वी नीड टू फ्लाई। तो हमने तो अप्रूवल ले लिया, लेकिन क्या नहीं है। फॉर दैट वी नीड टू ओपन द ड्राइव ओनली। जस्ट a second, let me show if I'll get। ठीक है, एनी हाउ मैंने वो डायग्राम दिखाया था ड्यूरिंग वेक टर्बुलेंस। सो 1000 फीट के सेपरेशन में अल्टीट्यूड मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो आपका एयरक्राफ्ट दूसरे एयरक्राफ्ट को डिस्टर्ब कर सकता है या आप खुद दूसरे एयरक्राफ्ट से डिस्टर्ब हो सकते हो। इसके लिए 2 इंडिपेंडेंट, 2 अलग अलग अल्टीट्यूड मेजरमेंट सिस्टम और अल्टीट्यूड रिकॉर्डिंग एंड अलर्टिंग सिस्टम होनी चाहिए कि अगर आप किसी भी रीजन से, सपोज आप 37,000 फीट पे फ्लाई कर रहे हो, अगर आप डेविएट करके 36,600 36,500 पे आ गए तो आपको अल्टीट्यूड अलर्ट दे, ठीक है, कि आप नीचे जा रहे हो। तो आपके एयरक्राफ्ट में 2 अलग अलग की एक फेल भी हो जाए ना तो दूसरा आपके पास अवेलेबल है। तो 2 इंडिपेंडेंट अल्टीट्यूड मेजरमेंट सिस्टम, अल्टीट्यूड अलर्टिंग सिस्टम अवेलेबल होने चाहिए। तो इसके लिए क्या किया गया? ASI, VSI, अल्टीमीटर, इन तीनों का स्टैंड बाय इंस्ट्रूमेंट्स दे दिया गया कॉकपिट में। यानी ये सारे 2-2 रहेंगे, एक एक्टिव
और दूसरा स्टैंड बाय, और इसके मेजरमेंट भी इंडिपेंडेंट होने चाहिए। इसके लिए एयरक्राफ्ट में पिटॉट स्टैटिक सिस्टम, जो कि जनरली 2 होते हैं एयरक्राफ्ट में, उसको इंप्रूव करके 2 अलग अलग बना दिया गया। ठीक है, टोटल 4। ठीक है, तो आप बहुत सारे एयरक्राफ्ट में देखते होंगे कि 4 पिटॉट सिस्टम है। 4 नहीं तो कम से कम 3 तो जरूर देखते होंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि 2 अलग अलग मेजरमेंट सिस्टम बनानी है। इज दैट ओके? ओके। उसके अलावा आपके एयरक्राफ्ट में एक ट्रांसपोंडर होना चाहिए मॉड एस वाला। ठीक है, मॉड एस ट्रांसपोंडर। अब ट्रांसपोंडर्स के मोड्स क्या क्या होते हैं? एक होता है मोड ए, एक होता है मोड सी, और एक होता है मोड एस। मोड ए वेयर कंटेनिंग द एयरक्राफ्ट आइडेंटिफिकेशन, कि कौन सा रजिस्ट्रेशन है और ऑपरेटर का नाम क्या है। मोड सी वेयर कंटेनिंग एल्टीट्यूड डेटा। तो बीच में क्या किया गया, मोड ए और सी दोनों को एक साथ ऑपरेट करने जाने लगा, यानी 2 ट्रांसपोंडर्स लगाए जाने लगे। फिर इंप्रूवमेंट आई और अब आते हैं एयरक्राफ्ट ट्रांसपोंडर मोड एस। ठीक है, इसमें आपके एयरक्राफ्ट का अल्टीट्यूड, ऑपरेटर नेम और भी बहुत सारे फ्लाइट प्लान रिलेटेड डिटेल्स अवेलेबल रहते हैं। तो आपके एयरक्राफ्ट में एक ट्रांसपोंडर होना चाहिए, उसको बोलते हैं सेकेंडरी सर्वेलेंस रडार, SSR। यानी आपके एयरक्राफ्ट में एक ट्रांसपोंडर, 2 अल्टीट्यूड मेजरमेंट सिस्टम और टीकैस 2 एंड अबव, आकाश और टीकैस, इसका वर्जन 2 एंड अबव आपके एयरक्राफ्ट में होने चाहिए। आकाश 1 नहीं, टीकैस 1 नहीं, टीकैस 2 या उससे अबव होने चाहिए। अब आकाश 1 और टीकैस 2 में क्या डिफरेंस है? इसका जो फर्स्ट वर्जन था, एकैस और टीकैस, एयरबोर्न कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम, या टीकैस ट्रैफिक कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम, दोनों एक ही है। जो इसका फर्स्ट वर्जन था, दे वेर गिविंग ट्रैफिक एडवाइजरी ओनली। सामने एयरक्राफ्ट है, सामने एयरक्राफ्ट है, बट व्हेन इट इज टीकैस 2 दे यूज्ड टू गिव रिजोल्यूशन एडवाइजरी एज वेल, पुल अप, गो डाउन, इस टाइप से। तो आपको रिजोल्यूशन एडवाइजरी भी मिल रहा है। तो अगर आपको आरगेसा का अप्रूवल चाहिए तो 2 अल्टीट्यूड मेजरमेंट सिस्टम, एक ट्रांसपोंडर और एक टीकैस 2 होना ही होना है। इसके अलावा एक चीज और लिखा हुआ है जो कि हिडन है, वो आपको डायरेक्टली पता नहीं चलेगा, और वो होता है ऑटो पायलट। अब आप बोलोगे सर ऑटो पायलट तो लिखा हुआ ही नहीं है। ध्यान से इस कंडीशन को अच्छे से पढ़ो। एन ऑटोमेटिक अल्टीट्यूड कंट्रोल सिस्टम, अलर्टिंग और मेजरमेंट तो हो गया 2 अलग अलग। उसके अलावा ऑटोमेटिक अल्टीट्यूड कंट्रोल सिस्टम शैल आल्सो बी रिक्वायर्ड। मतलब अगर गलती से थोड़ा सा अप डाउन जाने लगे तो आपका एयरक्राफ्ट ऑटोमेटिक अपने ओरिजिनल पार्ट पे रिटर्न होना चाहिए। ये काम कौन करके देगा? ऑटो पायलट। कि उधर कहाँ जा रहे हो, इधर आओ। जो डेटा आपने फीड किया है उसको मेंटेन करके देगा कौन? ऑटो पायलट। विदाउट ऑटो पायलट यू कांट डू, क्योंकि ह्यूमन से मिस्टेक होगा। डन? तो आपके एयरक्राफ्ट में एक ऑटो पायलट, 2 अल्टीट्यूड मेजरमेंट सिस्टम, एक ट्रांसपोंडर और एक टीकैस होने चाहिए, तभी आपके एयरक्राफ्ट को आरवीएसएम का अप्रूवल मिलेगा। इज दैट क्लियर सो फार? क्लियर। सो क्लियर। एग्जाम में दिस वाज द आरवीएसएम, इंपॉर्टेंट फॉर पार्ट 2। थ्रू आउट द टर्म्स you need to understand and define whenever it required, but एग्जाम में क्या जरूरत पड़ती है? कुछ नहीं। एग्जाम में इतना सारा आपको पूछेगा ही कोई नहीं। इन पार्ट 2 दे में आस्क, बस इन पार्ट 1 वो आपसे नहीं पूछेंगे। तो पार्ट 1 में आरवीएसएम का क्या इंपॉर्टेंस है? पार्ट 1 में आरवीएसएम का ये इंपॉर्टेंस है कि अगर आप आरवीएसएम एयरोस्पेस में फ्लाई कर रहे हो और इन चारों इक्विपमेंट में से कोई सा भी एक इक्विपमेंट फेल हो गया, तो ये आपकी ड्यूटी है कि आप एटीसी को इन्फॉर्म करो और वापस आरवीएसएम एयरोस्पेस को छोड़ के बाहर आ जाओ। ठीक है, यही हमको एग्जाम में करना है। एग्जाम में कंडीशन रहेगा कि यू आर फ्लाइंग एट फ्लाइट लेवल 310, योर ट्रांसपोंडर्स फेल, अल्टीट्यूड मेजरमेंट सिस्टम फेल्स, ठीक है, टीकैस सिस्टम माल फंक्शन, इस टाइप से। तो आपके कोई ना कोई इक्विपमेंट खराब हो जाएंगे इन द एयर,
तो आपको ये वाला एयर स्पेस छोड़ के बाहर निकलना है, और इसी पे क्वेश्चन रहता है पार्ट 1 में। इज दिस क्लियर टू ऑल? क्लियर। सर तो हम लोग कल देखेंगे। हाँ बोलो, गो अहेड। सर इसमें 2 अल्टीमीटर लगा है इंडिपेंडेंट। अगर इन कंडीशन एक अल्टीमीटर फेल हो जाता तो एक तो काम कर रहा है, तो क्या तब आरवीएसएम में नहीं ट्रेवल कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं? नहीं 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 नहीं, आपको छोड़ के नीचे आना है वापस। क्यों? क्योंकि आपका एक सिस्टम होता है ना एक्टिव स्टैंड बाय, उसका मतलब होता है कि आपका ऑपरेशन सेफली आगे बढ़ा दे। एक माल फंक्शन करता है तो दूसरा भी प्रोन टू माल फंक्शन होता है, कि पहला क्यों खराब हो गया। तो आप बोलोगे पिटोट ट्यूब में डस्ट चला गया होगा या एलआरयू फेल हो गया। तो जब एक एलआरयू फेल है तो हो सकता है दूसरा भी फेल हो जाए, तो आप सेफर अल्टीट्यूड पे पहले आओ। ठीक है, दो में से ऐसा नहीं होता है कि एक खराब हो गया तो दूसरा मेरा काम करेगा, नहीं। वो आपको बस टेम्पररली थोड़ा सा हेल्प करेगा, बट वो भी खराब हो सकता है इन अपकमिंग टाइम्स। तो आप थोड़ी दूर तक अपना अल्टीट्यूड मेंटेन करो, बट जल्दी से जल्दी उसे उसको छोड़ के बाहर आओ। इज दिस ओके? ओके सर। पूरा ब्लैक आउट नहीं हो जाओ, इसी के लिए आपका स्टैंड बाय इंस्ट्रूमेंट्स आपका हेल्प करता है, लेकिन स्टैंड बाय पे आप रिलाई नहीं कर सकते। जब आपका मेन सिस्टम काम नहीं किया तो स्टैंड बाय कहां तक काम करेगा। ठीक है, सो दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ आरवीएसएम। अब इस पे क्वेश्चन हम लोग कल प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, लाइक वी डिड टुडे फॉर डेविएशन। तो इसी तरह से आरवीएसएम का क्वेश्चन हम लोग कल प्रैक्टिस करेंगे। आज के लिए आरवीएसएम का थ्योरी इतना ही था, एंड आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। इज दिस क्लियर टू ऑल? क्लियर। यस सर, क्लियर। तो आप लोग भी पेज नंबर 25 ओपन करो, पेज नंबर 25 ओपन करो, और अपने से आरवीएसएम कंडीशन को थॉरो रीड आउट दो एक बारी, क्योंकि पार्ट 2 के लिए इंपॉर्टेंट है। तो कल जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उससे पहले अगर आपको आरवीएसएम पे कोई डाउट हो देन यू कैन आस्क मी, अदरवाइज वील मूव टू द क्वेश्चंस रिगार्डिंग आरवीएसएम। इज दैट क्लियर टिल नाउ? क्लियर। चलो फिर, नेक्स्ट टॉपिक इज सेमी सर्कुलर रूल। सेमी सर्कुलर रूल ये क्या कहता है? Suppose our earth is a circle, so if we divided into two equal half throughout the pole, then it will become two semicircle। ये नॉर्थ ये साउथ, ये दोनों होते हैं पोल, और ईस्ट और वेस्ट होता है आपका इक्वेटर। तो इफ वी डिवाइडेड थ्रू आउट द पोल तो विल गेट टू सेमी सर्कल। अब सेमी सर्कल क्या कहता है, याद करो हमने रूट में पढ़ा था कि अगर आप नॉर्थ साइड जा रहे हो तो रूट चूज करोगे विस्की 13 नॉर्थ, साउथ जा रहे हो तो विस्की 13 साउथ, ईस्ट जा रहे हो तो विस्की 13 ईस्ट, और सदर्न जा रहे हो तो विस्की 13 सॉरी वेस्टर्न जा रहे हो तो विस्की 13 वेस्ट। रूट वाले इंफॉर्मेशन में हमने ये प्लानिंग बताई थी, रिमेंबर? यस। ठीक है, सिमिलरली यस दिस इज द कंडीशन कॉल्ड एज सेमी सर्कुलर रूल। इसमें क्या होता है कि while डूइंग योर फ्लाइट प्लानिंग, जब आप अपना फ्लाइट प्लान कर रहे हो उस केस में जो आपका क्रूजिंग अल्टीट्यूड है, ठीक है, आरवीएसएम एयरोस्पेस में लगभग सारे एयरक्राफ्ट क्रूज करने के लिए जाते हैं, स्ट्रेट एंड लेवल फ्लाइट करने के लिए जाते हैं। ठीक है, तो जिस कंडीशन में आपका क्रूजिंग अल्टीट्यूड है आरवीएसएम एयरोस्पेस के अंदर, अगर आपका रेडियल या आपका हेडिंग, ठीक है, अगर आपका रेडियल या हेडिंग पड़ता है 01 डिग्री से लेके 179 डिग्री तक, तो आपको जो फ्लाइट लेवल चूज करना है इन आरवीएसएम, दैट फ्लाइट लेवल शैल बी ऑड, 29,000 फीट, 31,000 फीट, 33, 35, 37, 39, 410, इस टाइप से। अगर आपका करंट रेडियल जिस रूट पे आप ऑपरेट करोगे उस रूट का रेडियल जहां पे आप क्रूज करोगे, अगर वो ऑड फ्लाइट सेमी सर्कल में पड़ता है, यानी उसका हेडिंग 001 डिग्री से लेके 179 डिग्री के बीच है, तो आप ऑड अल्टीट्यूड चूज करोगे। और
अगर आपके रूट का रेडियल या हेडिंग 181 से लेके 359 के बीच में पड़ता है तो आप आरवीएसएम में इवन फ्लाइट अल्टीट्यूड चूज करोगे, 30,000 फीट, 34, 36, 38 लाइक दिस। ठीक है, दिस इज रिगार्डिंग द प्लानिंग। बट एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है उसमें प्लानिंग हम तो करते नहीं है, तो ये चीज हमारे लोड पे नहीं आएगा, हमारे लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। बट इन द पार्ट 2 इफ दे आस्क व्हाट इज द सेमी सर्कुलर रूल, वी शुड नो कि इफ ऑन अ रूट, ठीक है, जो हमारा क्रूजिंग अल्टीट्यूड है, अगर वहां पे हमारा रेडियल 1 डिग्री से लेके 179 डिग्री तक आएगा, यानी ईस्टर्ली फ्लाइंग, ये ईस्ट डायरेक्शन में अगर हमारा हेडिंग आता है तो ईस्टर्ली फ्लाइंग में हम ऑड अल्टीट्यूड चूज करते हैं इन आरवीएसएम। और वेस्टर्ली फ्लाइंग यानी हमारे रूट का रेडियल 181 से लेके 359 के बीच में आता है तो वेस्टर्ली फ्लाइंग में हम इवन अल्टीट्यूड चूज करते हैं इन आरवीएसएम। इज दिस क्लियर टू ऑल? क्लियर। बट अगर क्वेश्चन में ईस्टर्ली फ्लाइंग में इवन अल्टीट्यूड दिया हुआ है तो हम क्वेश्चन पे क्वेश्चन नहीं उठाएंगे, ठीक है, क्वेश्चन पे डाउट नहीं करेंगे, फ्लाइट प्लान में जैसा दिया हुआ है हम सिर्फ वैसा आंसर कर देंगे। ये हमारे फ्लाइट प्लानिंग का पार्ट है। किसी से अगर प्लानिंग में मिस्टेक हुई है तो उसको हम दोष देने नहीं जाएंगे। फिर आप बोल सकते हो कि सर आपने 1279 पढ़ा दिया, 181 से 359 पढ़ा दिया, व्हाट अबाउट 180 डिग्री एंड 360 डिग्री और 000 डिग्री, इसके बारे में क्या? ये फ्लाइट ना तो ईस्टर्न है ना ही वेस्टर्न है, ये पोल्स है, ये पोलर फ्लाइट है, तो इसका डायरेक्शन ना ही ईस्टर्ली है ना ही वेस्टर्ली है, इसीलिए 0 डिग्री और 180 डिग्री इस स्कोप से बियॉन्ड है। ठीक है, सो ये तो हो गया सेमी सर्कुलर रूल। अब आप बोलोगे सर ये फिर पढ़ाया क्यों जब इसका कोई मतलब ही नहीं हमारे लिए? इसका मतलब हमारे लिए सिर्फ एक ही है कि अगर हम आरवीएसएम में जब फ्लाई कर रहे हैं और अगर हमारा करंट फ्लाइट अल्टीट्यूड इवन है तो जो हम एग्जिट डिमांड करेंगे वो भी इवन अल्टीट्यूड का डिमांड करेंगे। ठीक है, 26,000 फीट, 24,000 फीट, 28,000 फीट लाइक दिस। और अगर हम आरवीएसएम में ऑड अल्टीट्यूड पे फ्लाई कर रहे थे तो जो हम एग्जिट डिमांड करेंगे वो भी ऑड अल्टीट्यूड का एग्जिट डिमांड करेंगे। इज दिस क्लियर टू ऑल नाउ? तो हम सेमी सर्कुलर रूल को ऐसे फॉलो करते हैं कि अगर आरवीएसएम में फ्लाई करते टाइम हमारा फ्लाइट लेवल इवन था तो एग्जिट में भी इवन में ही रहेंगे, और अगर फ्लाई करते टाइम हमारा अल्टीट्यूड ऑड था तो एग्जिट में भी ऑड में ही रहेंगे। Am I clear so far? समझ में आया सबको? अफर्म। ठीक है, so leave this topic here only. We'll continue with the questions tomorrow कि आरवीएसएम से क्वेश्चन कैसे बनते हैं। Tomorrow first half we'll continue with the question and then we'll open the new topic. I don't think कि new topic open करने की जरूरत पड़ेगी क्योंकि आरवीएसएम ही कल पूरा का पूरा टाइम ले जाएगा। ठीक है, so आप एक बार थॉरो रीड आउट करो पेज नंबर 25 एंड पेज नंबर 26। If you have any kind of doubt, feel free to ask before starting the topic tomorrow. कल क्लास स्टार्ट करने से पहले आप अपने सारे डाउट्स क्लियर कर लो। ठीक है, is that clear so far? क्लियर। Clear, sir. Then that's all for today. I'm completing the meeting and we'll continue with the further topics from tomorrow. ठीक है, I think that's enough for today. So good night for today. We'll see you tomorrow same time 9 o'clock. Done. Good And night. tomorrow is Sunday. Tomorrow is Sunday. If you are having time in afternoon, so you can ask me to join. ठीक है कि sir I need extra classes to cover up certain topics tomorrow. If you are having time, you can ask. Done? चलो. Good night for today. See you tomorrow. Okay, Good night. sir. Bye. Thank you. Good night everyone. Good night.